Hello children, today's topic for learning is living and non-living things. This is the first chapter in EVS of class 4. In this chapter you will learn about the differences between living and non-living things and characteristics of living things. कहने का मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है और लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेन थिंग इस चैप्टर में आप यही सीखेंगे. We live in a beautiful world. There are beautiful flowers, trees, animals, our friends and other people around us. These are all living things because they have life in them. We also see the sun, water, soil, buildings and vehicles. These are non-living things because they are not alive. This means हम लोग सभी सुंदर संसार में रहते हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर फूल हैं, पेड़ पौधे, जानवर, हमारे दोस्त और अदर दूसरे लोग सभी यहाँ हैं. ये सभी जीवित वस्तु हैं क्योंकि इनमें जीवन है. और इसके अलावा हम लोग सूरज, पानी, मिट्टी, बिल्डिंग और व्हीकल्स भी देखते हैं. ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि ये जीवित चीज नहीं है. Look at the pictures and name some living and non-living things. इस दोनों को पिक्चर को देखिए और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को बताना है. What do we see, children? In living things, butterfly, tree, boy, girl, bird. And in non-living things, ball, shirt, shoes, bench. Some of the non-living things are man-made and others are natural. Among the natural things, plants, animals and human beings have life. They are called living things. Some natural things like soil, mountains, water also do not have life. They are called non-living things. All things around us like table, chair, TV, computer, etc. are man-made things. They are also non-living things. How do we make out that a thing is living or non-living? Let us identify some characters of living and non-living things. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ नेचुरल होता है जो कि प्रकृति में होता है. इन नेचुरल जो थिंग्स हैं वो प्लांट्स हैं, जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स, इनके पास लाइफ है, ये इसीलिए लिविंग थिंग्स कहलाते हैं. और कुछ नेचुरल थिंग्स जैसे कि सॉइल है, मिट्टी, माउंटेन, पहाड़, पानी, ये सभी जो है इनके पास लाइफ नहीं होता है. दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग, इसीलिए नॉन लिविंग कहलाते हैं. और ये सभी हमारे वातावरण में चारों तरफ हैं. कुछ चीज़ें जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, चेयर, टेबल, ये सभी आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चीज़ लिविंग है, नॉन लिविंग है? तो उसे पहचानने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम पहचानेंगे. कैरेक्टर को देख करके ही पहचानेंगे. लिविंग थिंग्स नीड फूड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू life. Food produces energy to the body and helps it to grow. Food helps to stay healthy and strong. Human beings and animals cannot make their own food, so they take food from plants and other animals. Green plants make their own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll. This is called photosynthesis. बच्चों, आपको पता होगा कि सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. भोजन हमें एनर्जी देता है खाना खाने से हमारे शरीर को, और यह हमें ग्रो करने में, बढ़ने में हमारी हेल्प करता है. आदमी और जानवर ये दोनों अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये अपना खाना जो है प्लांट और दूसरे जानवरों से ये अपना खाना लेते हैं. और ग्रीन प्लांट्स
सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना ये खुद बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। वी ऑल नीड टू ब्रीथ टू लाइव। वी नीड एयर टू ब्रीथ। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव out carbon dioxide. Humans breathe through their nose. From the nose, the air goes to the lungs. Cats, dogs, whales, and other animals also have lungs which help in breathing. A fish breathes through its gills. Insects like crocodiles and flies breathe through holes on the surface of their body called spiracles. Plants breathe through tiny pores on their leaves called stomata. Non-living things do not breathe. Does your car breathe? अब है सभी जीवित चीज़ जो हैं सांस लेते हैं और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत भी है, और हमें ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए हवा की। और आदमी और जानवर जो है ऑक्सीजन हवा में जो प्रेजेंट होता है उसी से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। आदमी नाक के द्वारा सांस लेता है और यह जो है फिर यह हवा फिर चला जाता है लंग्स में। बिल्ली, कुत्ते, व्हेल्स और भी दूसरे जानवर जो हैं उनके भी लंग्स होते हैं जो कि उनको सांस लेने में मदद करते हैं। फिश जो है मछली, वो गिल्स के द्वारा उनके गिल्स होते हैं जिससे कि वे सांस लेते हैं। और इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच और मक्खी जो होती हैं वो उनमें उनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि उस छेद को स्पाइरेकल्स कहते हैं। और प्लांट्स जो है पेड़ पौधे जो है सांस लेते हैं स्टोमेटा के द्वारा जो कि पत्ती के सरफेस पर होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं। क्या आपका कार सांस लेता है? नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, दैट इज लिविंग थिंग्स live for a certain period of time, grow old and die. For example, birds grow into flowers, a baby boy grows up into a man, a cub into a tiger, etc. Living beings also reproduce their young ones, that is, they have babies, they give birth to young ones of their own kind. सभी लिविंग चीज़ें जो है ग्रो करते हैं और बदलते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ सर्टेन पीरियड होता है जो कि वो ग्रो करते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बर्ड्स, फूल में परिवर्तित हो जाता है, एक बेबी बॉय बड़े होकर के एक मैन बन जाता है, और एक कब जो कि वो टाइगर में बदल जाता है। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस, एक छोटे बेबी को जन्म देते हैं अपने जैसा ही। सम एनिमल्स लाइक मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, टाइगर्स, मंकीज, डॉल्फिन एट्सेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस। दीज बेबीज फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। मैमल्स प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। Some animals such as birds, insects, reptiles, fishes, frogs and snails usually reproduce by laying eggs. The young ones of these animals hatch from their eggs. Fish lay thousands of eggs at a time in water, which are surrounded by a kind of jelly. Out of these, only few hundred grow into fish. Reptiles like crocodiles, lizards, snakes and turtle lay eggs on land. कुछ मैमल जानवर जैसे ह्यूमन बीइंग, टाइगर, मंकी, डॉल्फिन, ये सभी जो हैं बेबी को बर्थ देते हैं, और ये सभी बेबीज़ जो है अपनी मदर का मिल्क पीते हैं। मैमल्स जो होता है प्रोटेक्ट करता है और अपने बच्चों की देखभाल करता है।
कुछ एनिमल जैसे कि बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल है, फिशेस है, फ्रॉग है और स्नेल्स हैं, ये सभी यूजुअली अंडे देते हैं। ये रिप्रोड्यूस अंडे दे करके करते हैं। तो ये सभी यंग वंस जो होते हैं, जानवर, छोटे बच्चे जो होते हैं, ये इनके अंडे से ये बाहर आते हैं। फिश जो है एक बार में हजारों अंडे देते हैं पानी में, जो कि एक तरह का जेली होता है, उसके चारों तरफ घेरा हुआ होता है उसमें, और इसमें से कुछ 100 ही जो होते हैं फिश जो है बाहर उस अंडे से बाहर निकलते हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, स्नेक है और टर्टल है, ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ साइकिल्स। ऑल एनिमल्स अंडरगो various stages in their lives when they grow and change. This is called a life cycle. The picture on the right side shows the life of a butterfly. Non-living things do not grow and reproduce. हर का अपना लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र। सभी जानवर जो है एक अलग अपने जीवन में अलग अलग वेरियस स्टेज होते हैं जो कि वो ग्रो करते हैं और अपने आप को बदलते हैं, उसे ही लाइफ साइकिल कहते हैं। दाहिनी तरफ जो यह पिक्चर दिखाया गया है यह बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है ग्रो नहीं करते हैं और रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स मूव। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। We go to school, play in the park, eat food and take a bath. Animals also move from one place to another in search of food, shelter and to escape from danger. आप सबको बच्चे पता हुआ कि हम सभी लिविंग थिंग्स जो है मूव भी करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, खाना खाते हैं, बाथ लेते हैं, और जानवर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस इसी तरीके से भोजन की सर्च में और शेल्टर की खोज में ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट्स इन प्लांट्स। दो प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक वी डू, बट दे ऑल्सो शो मूवमेंट. Plants respond to changes in the environment or stimuli. They grow towards light. Sunflowers turn and follow the direction of the sun to grow. Leaves of plants like touch me not shrink when we touch them. पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट शो करते हैं. प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट में, अपने आप को चेंज करते हैं. दे ग्रो टूवर्ड्स लाइट. वो सूरज की तरफ जो है वो ग्रो करते हैं. जैसे सनफ्लावर वो सूरज की डायरेक्शन की तरफ अपने आप को टर्न कर लेते हैं और बढ़ते हैं. प्लांट्स लाइक टच मी नॉट को भी अगर हम उसे टच करते हैं तो वह श्रिंक हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट्स इन एनिमल्स. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड to look for food and shelter. Birds and insects also use their feet and wings to move. Some animals like snakes and earthworm use their bodies to move, crawl. Non-living things do not move on their own. आदमी और जानवर सभी अपना पाँव यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, खाना खाने के लिए और शेल्टर की खोज में. बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी अपना फीट जो है और विंग्स को यूज़ करते हैं मूव करने में. कुछ जानवर जैसे सांप और अर्थवर्म यूज़ करते हैं अपने बॉडी को मूव करने में, उस मूवमेंट को क्रॉल कहते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स जो है मूव नहीं करते हैं अपने आप. नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स फील.
When you get hurt, it pains. When you touch something hot or cold, a sharp object, you remove your hand immediately as you feel pain. Animals also feel things with their sense organs, that is, skin. A plant grows towards light. Similarly, a root grows downwards and a shoot grows upwards. Flowers also bloom in a particular season. Non-living things cannot feel anything. जब हमें चोट लगती है तो दर्द होता है। जब हम किसी भी ठंडे और गर्म चीज़ को छूते हैं या शार्प किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम अपने हाथ को इमीडिएटली वहाँ से हटा लेते हैं, जैसा कि हमें पेन फील होता है। तो जानवर भी फील करते हैं, वो सेंस ऑर्गन्स से, स्किन से करते हैं। प्लांट ग्रोज करते हैं लाइट में, ऊपर की तरफ। सिमिलरली रूट, जो प्लांट का सबसे ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है, वह ज़मीन के नीचे डाउनवर्ड्स में ग्रो करता है और शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है। और फूल भी ब्लूम करते हैं, खिलते हैं अपने अपने सीज़न में। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है कोई भी उसमें फीलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. Non-living things like sunlight, air, water and soil are very important for us. Sunlight, the sun is the main source of light, heat and energy. We get this energy to grow. Plants use sunlight, carbon dioxide and water to make their food. The sun also makes life possible by providing warmth. अब है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर करते हैं। लिविंग थिंग्स आपको पता है बच्चे कि सनलाइट है, एयर, वाटर और सॉइल, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए सबसे पहले सनलाइट के बारे में जानते हैं। आप सबको पता है, जैसा कि पिछले क्लास में भी पढ़े हैं आप इसके बारे में, सूरज जो है मेन स्रोत है हीट, लाइट और एनर्जी का। हमें भी एनर्जी मिलता है ग्रो करने के लिए और प्लांट्स यूज़ करता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अपना भोजन बनाने के लिए। सूरज के बिना हम लोगों का जीवन पृथ्वी पर निर्भर नहीं है और यह हमें हमारे लाइफ को पॉसिबल करता है और हमें गर्मी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. It helps both humans and animals in digesting their food. 70% of the human body consists of water. Plants need water to produce food in their leaves. पानी का हमारे जीवन में प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा बॉडी जो है 70% वाटर से ही जो है बना हुआ है और यह फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है पानी की, वह अपना भोजन जो है बनाता है, वो लीव्स में वह पानी जाता है, उसके थ्रू वह भोजन बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एयर. द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ. It contains carbon dioxide which is required by plants for preparing their food. Next is soil. The soil found on earth contains a number of minerals. Living things need minerals for healthy growth. Plants absorb minerals through their roots. Animals and humans take in minerals by eating plants. Hence, soil sustains life. Similarly, non-living things have made life easier and comfortable for humans. We cannot think of living without houses, clothes, electricity, etc. पृथ्वी चारों तरफ से हवा से घिरी है और यह बहुत सारे गैस है इस हवा में। इसमें एक ऑक्सीजन गैस है जो कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है और इसमें इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है
जो कि प्लांट्स जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सॉइल जो है पृथ्वी पर पाया जाता है और इस सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लिविंग थिंग्स को इस मिनरल की ज़रूरत होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। हेल्दी ग्रोथ होता है इस मिनरल से, और प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करता है मिनरल उनके जड़ों के द्वारा। जानवर और आदमी भी मिनरल्स लेता है डिफरेंट प्लांट्स को खा करके, और यहाँ पर सॉइल जो है हमारे लाइफ को सस्टेन करता है। इस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स हमारे लाइफ को ईजी और कंफर्ट बनाता है, और हम बिना नॉन लिविंग थिंग्स के नहीं रह सकते हैं, जैसे घर है, कपड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एट्सेट्रा सब। Thank you for watching this video children, but don't forget to share, like and subscribe my channel.